आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ हितेश मोदी को। थैंक यू सो मच हम लोगों को ईमेल लिखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अभी हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज की वीडियो जिन्होंने हमें सजेस्ट की है वो है अभिषेक और वीडियो का टाइटल है वी विजिटेड अरण्या निवास, अ रिजॉर्ट इनसाइड अ जंगल इन ओडिशा, कर्ली टेल्स। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें कर्ली टेल्स के चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये ओडिशा है। So I landed myself up in this jungle of Orissa. Well, this place is mainly known for its flora and fauna, and I've heard so much about it. All in all, this place is beyond beautiful. पानी की बात And आ रही है this is how I got here. दूध गिर रहा ऊपर से। यार मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। I travel from Borivali to Kurla every single day for work. There's traffic, noise, stress, and anxiety all the time. I needed a break. Outside of the concrete jungle to a real jungle. A place that's not crowded or commercial. And so I took a flight to Bhubaneswar, which is 5 hours away from the Aranya Niwas in Simlipal, Orissa. तो भुवनेश्वर तो पहुंच चुके हैं और यहाँ कुछ 1 बजा है। बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो सबसे पहले पेट पूजा और फिर काम। ये हमारे वाला काम। गुड। अभी पेट पूजा पे काम दूजा। अरण्या निवास। So after that long journey, I have finally arrived to my resort, which is called as the Aranya Niwas in the Lulung area of Mayurbhanj district. I literally cannot wait to check in and then just get into my room. Chalo. इतने अच्छे तरीके से वेलकम किया ना। Simlipal National Park derives its name from the abundance of red silk cotton trees growing in the area. It is the 7th largest national park in India. Okay. The park has some beautiful waterfalls like Joranda and Devkund. It is home to the Devkund. Bengal tiger, the Asian elephant, Okay. and many rare species of birds. The property is a noise-free zone and houses 20 cozy cottages situated in a green landscape my setting God. of flora and fauna. There's multiple categories of rooms to choose from. Okay, family. Stay at the cottage. spacious air-conditioned cottage, perfect for a family getaway with 2 twin beds and a gorgeous view of the mountain. Or you can choose the suites nestled in the dense green forest that come with 2 rooms, a dining space and a seating area. Wake up to the sound of the river flowing as you stay in these bright and airy cottages. Good morning, guys. Well, my sleep was amazing. My room was so cozy and comfy. I literally slept like a baby after yesterday's travel. And then waking up to this river's gushing sound behind me is just so calming. मतलब दिन की क्या शुरुआत है? Enjoy a hearty breakfast at the restaurant. Italy, ये ग्रेपफ्रूट, maybe, खजूर। maybe. Or take a dip in the gorgeous infinity pool that's set in a jungle. Well, there's something about this place also that you should be knowing कि यहाँ पे बिल्कुल भी network connectivity आपको नहीं मिलेगी and there is अच्छा। zero Wi-Fi, which means that it's a complete digital detox. Well, the thought can be a little daunting when you come at first. It was for me as well. लेकिन यहाँ रहने के बाद my mind has completely changed. Trust me, the feeling is unmatched. Being one with just nature. Have lunch at the in-house restaurant where you can indulge in some
authentic local delicacies. So what even is a complete trip without indulging in a hearty meal, right? It's lunchtime and I was supremely hungry. So I called for some food and they've got me some amazing looking food here. It even smells amazing. Here's some Karela and aloo chips, which is something very new. I haven't tried it before. मैंने भी नहीं कभी सुना। मैंने भी नहीं सुना। Chips। ये क्या है? साग का कुछ लगता है। Taste amazing. और जंगल आके जंगल सफारी तो बनती है. Head into India's 7th largest national park for a safari. So हम जंगल सफारी के लिए आए हैं. Our windows are rolled down currently because animal spotting is a little dicey over here. So that's okay. See if we can spot any animal over here. Head back to the resort and spend a calming time walking by the lush greens. Well, and to be one with nature, you don't really require a specific time of the day, right? यहाँ आप कभी भी चल के आओ, आपको greenery ही greenery दिखेगी. There are like exotic types of plants here. There are over 100 species of plants and flowers that you can find here. They're all even labeled so you know which one is Where I which. go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. Well, so there is a tribal dance which also happens here during the evenings. It's called as the Karam dance, and the name is derived from a tree which is called as Karam. Usually they do this dance as it's devoted to the gods. So चलिए देखो. मुश्किल है। बहुत बैलेंस किया। So by the time it's evening, the property totally transforms into something else. So if you're looking at hosting a special occasion or a special event for yourself, then you can request to the staff, and this is what the place will look like. Okay. Cheers of trees, all So the this cheers for me there. is nothing short of dining under the stars. Okay, day 2. Well, my morning could certainly not get any better than this. I woke up early to catch the sunrise, and now I sat down for some yoga. I can literally hear so many birds chirping here. Look, this is an experience that you can never get in a city. Being one with nature is truly something that everyone should embrace. काफी बड़ा रिजॉर्ट। Well, अगर यहाँ तक आए हैं तो we might as well visit a tribal village. यहाँ पे इनकी community का एक village है जहाँ पे we really wanted to go and visit this local village, meet the people, see what they do throughout their day. So that's where we're headed right now. Okay, so this is Christopher, and he's been kind enough to come with us to translate because we obviously cannot understand the tribal language. So thank you, Christopher. So here are some villagers who caught fish freshly last night. They put in the net last night, and right now they're just collecting the fish from that. So it's pretty interesting to watch. मतलब जाल में से निकालते हैं ना। Okay, so here's something really interesting. This is like we have our todi. They have a very local alcohol जो दिखता है काफी पानी जैसा. It's called as mohuli. So what you see behind me is the tree.
जिसका फ्रूट रहता है मोहली, एंड दिस इज मेड फ्रॉम पल्पिंग दैट, एंड वंस इट्स पल्प्ड एंड द juice is taken out, this is what it looks like, and I'm going to give this a try इसमें से निकाला only for you guys. मेरा पहले मैं स्मेल किया Oh, it doesn't taste as strong and as bad as it smells. This area is located at the foothills of the Simlipal Wildlife Sanctuary in Mayurbhanj district of Odisha. Witness the alluring 60-meter high waterfall which draws tourists throughout the year. ये वाटर से Well, that was a super steep climb down, but totally worth it. जा सकते हो आगे जंप कर सकते हो थोड़ा बहुत अगर पानी गहरा हो तो फिर This has been quite a trek, but trust me, the view is so much worthwhile. At Aranya Niwas, life just instantly gets better. A comfortable abode, flavorful food, unmatchable surrounding sceneries, lush green landscapes and exciting treks make this place an ultimate destination for those seeking to be one with nature. ऐसे लग रहा है आसपास कुछ है ही नहीं है So Aranya Niwas has totally been a rejuvenating and detoxifying experience for me, away from all the noise and traffic of the city. Well, if you're looking for a place which is where you want to be one with nature, then this is definitely your spot. These guys also do a number of art and culture workshops that you can attend from time to time. So if you like this video and are looking to see more such videos and similar content, then don't forget to hit like, share and subscribe to Curly Tales. This is Reena Linamdar signing off. यार ऐसी जगह पर तो वाकई में स्टे करना चाहिए भाई मुझे इस जगह की सबसे अच्छी बात ये लगी कि वहां पर आपको मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलेगा और अगर मौसम आपको वहां पर ऐसे अकेले छोड़ दिया जाए ना तो फिर आप तंग भी पड़ जाएंगे वैसे मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मुझे जितना ऐसी जगहों पे घूमने का मजा आएगा ना मैं वहां पे तंग बिल्कुल नहीं पड़ूंगा अगर आप अकेले हो तो अकेला भी हूँ मैं एंजॉय कर लूंगा वाओ वैसे मुझे किसी कंपनी की जरूरत पड़ेगी ये मतलब तंग पड़ जाएंगी नहीं मैं अभी तंग नहीं पड़ूंगी उसकी रीजन ये कि मेरा बहुत ज्यादा फोकस पिक्चर्स लेने पर होता है वीडियो बनाने पर होता है तो मैं बिल्कुल भी तंग नहीं पड़ूंगी और मेरा फोकस था कि नियर बाय जितनी भी खूबसूरत जगहें हैं ना मैं सारी देख लूं एक बार मौसम का मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि मौसम मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करता है तो इस वजह से मैं कहती कि हो सकता है कि ये थोड़ा सा मतलब बोलता है कि मैं बोर हो रहा हूँ कि दिन नहीं गुजरा टाइम नहीं गुजरा नहीं मैं अगर ऐसी जगह पे हूँ ना मैं सुबह जाऊँ शाम को वापस आया करूँ लेकिन ये बात करेंगे कि जो रिजॉर्ट है आई मीन एक्सट्रीमली खूबसूरत बहुत खूबसूरत जगह है और मैं कहती हूँ कि जब आप ट्रैवल करते हो और कहीं पर रहते हो ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगता है कि आपकी जो अकोमोडेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपका अगर ट्रैवल को ना वो कहते हैं ना चार चांद लगा देती है मतलब हर बंदे का अपना अपना एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा टेस्ट होता है उनकी अपनी एक मिजाज होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि रहने की जगह बहुत अच्छी भाई मैं अगर बात करूँ तो बहुत नफासत पसंद लड़के जो है अमूमन गंदे होते हैं वो कहते हैं भाई सस्ती सी अकोमोडेशन मिल जाए जहाँ हम जाके रात को सो लें और सुबह उठें और घूम फिर के हम वापस आ जाएं सस्ती पर तो मैं भी कहती हूँ सस्ती होनी चाहिए लेकिन सस्ती के साथ अच्छी होनी चाहिए एटलीस्ट इस तरह की आपको पता है देखो कहीं पर भी जाते हो ना आपको वाइब आ जाती है भाई हाँ आप यहाँ पर इस हद तक एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते लेकिन जिस तरीके से हम रिजॉर्ट देखा हम लोगों ने और जो एक्टिविटीज और जिस तरीके से फूड और जो डांस यानी कि सब कुछ अगर देखें तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मुझे लगता है आपकी एक ट्रिप बनती है और आपको बोर होने का वाकई में टाइम नहीं मिलता और मैं अगर बात करूँ अरण्या निवास की तो उसके इर्द गिर्द का जो सराउंडिंग का एरिया है जितने खूबसूरत वहाँ पे दरख्त थे और पहाड़ों की मैं बात करूँ पहाड़ कितने खूबसूरत है मैं आप शहर की बात करूँ झरने की बात करूँ झरना भी बहुत
बहुत खूबसूरत था। दरिया तो वाकई बहुत खूबसूरत था ना, क्रिस्टल क्लियर वाटर था वहां पे। लेकिन ये है कि अगर आप सुबह उठ रहे हैं और आपके सामने आपके रूम के ऐसे दरिया बह रहा है, ओ माय गॉड, क्या नजारा होगा। मेरा तो ख्याल है कि रात को आप जब सोएंगे ना, तो सोते वक्त भी जब आपके कानों में वो आवाज एक आती वो जो आती है एक आवाज, अमूमन जो रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट कह रहा हूं, जब ये निवास में गई थे वहां पे भी आ रही थी, और साथ आपके जो है दरिया के साउंड आ रही हो, तो आपको वैसे ही बहुत अच्छी और सुकून की नींद आएगी। सुबह जब आप उठेंगे ना चाहते हुए भी आप फ्रेश होंगे। अच्छा, वैसे मैं यहाँ पर एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हम लोग काफी टाइम पहले जब नारायण का गान गए थे, तो रास्ते में हम लोगों ने स्टे किया था, क्योंकि मौसम बहुत खराब हो गया था, तो हम लोग को स्टे करना पड़ा। हाँ। अब जिस जगह पर हम लोगों ने स्टे किया था, वहां पर उसके बिल्कुल सामने दरिया बह रहा था, और इतना शोर था, मतलब दरिया का। कानों को अच्छा लगता है, लेकिन जब रात होती है ना, तो थोड़ा सा डर भी लगता है आपको। वैसे मैं अगर साउंड की बात करूं तो मुझे जो है पानी का साउंड बहुत अच्छा लगता नहीं, है। अगर तो रोशनी ज्यादा हो ना तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बिल्कुल ही डार्क हो जाए ना तो फिर हाँ, मुझे फिर डर लगता है, क्योंकि वो एक अंधेरे से होता है थोड़ा सा। हाँ, इन्हें रात के टाइम जो है पहाड़ जो होते हैं हाँ, ना, मुझे उससे जो है पहाड़ों काफी से ज्यादा बहुत डर लगता है। हाँ। लेकिन मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे वो रात अभी भी याद है, क्योंकि उस रात हमारी गाड़ी ऐसी थी जैसे ऋषि कपूर सर अपनी गाड़ी चला रहे थे ना, उसमें देर ना हो जाए, और वैसे ही बारिश हो रही थी। वैसे 2 सीन इस तरह के मेरे साथ हुए, एक मरी वाला और एक ही जब हम नारायण के गान जा रहे थे। लिटरली ऐसे लग रहा था कि कोई चीज है जो ऐसे फोर्स के साथ मतलब गाड़ी को पुश कर रही है, मतलब इस तरह से हवा इतनी तेज। और उसके अलावा मौसम, उसके अलावा मैं ये बात करने लगा था, सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया। रात को जब हम सोए थे, हमें नजारे का पता नहीं था कि नजारा कैसा है, लेकिन जब सुबह हम उठे थे ना, बहुत खूबसूरत पुरसुकून जगह थी। बिल्कुल। वैसे लेकिन एक नया चीज जो मैं अपनी लाइफ में ट्राई करना चाहूंगी, और हो सकता है आने वाले टाइम में मुझे चांस भी मिले, कि जब भी ऐसे पहाड़ी इलाकों की तरफ जाए ना, तो आपको डिफरेंट ट्राइब्स के मतलब जो लोग हैं वो मतलब परफॉर्म करते हैं अपना डांस वगैरह, तो मेरा बड़ा मन होता है कि मैं उनके साथ ना थोड़ा सा डांस करूँ। क्योंकि लास्ट टाइम पर भी जब हम लोग गए थे, तो मैंने देखा था हम लोग ऐसे गुजर रहे थे, और मतलब नीचे घर था रोड के साथ, और वहां पर शादी हो रही थी, और लोग वहां पर डांस कर रहे थे, और इनका डांस मुझे बड़ा मजे का लगता है, ऐसे घूम घूम कर और एक जैसा करते हैं। मुझे याद है, तो मेरा मन करता है कि मैं 1 मिनट के लिए रुक के तो एटलीस्ट उनके साथ ना डांस करूं। और फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उस साइड पर जाते हैं, जीप्स वगैरह में म्यूजिक ऑन होता है, और रात को वो लोग डांस कर रहे होते हैं, तो मजा आता है काफी ज्यादा देखने का। खैर, हम लोग बात करते हैं मौसम। आज रिजॉर्ट की जो हम लोगों ने ओडिशा का देखा है, मैं कहूंगी कि खूबसूरत तरीन चट्टाने अगर हम देखें, और स्पेशली पानी बहुत साफ, और मतलब ऐसी जगह पर मुझे नहीं लगता कि कोई ना जाना चाहे, जहां पर आपको हर चीज खाने पीने। कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसी जगह पे जाने को मना करेगा। वैसे नो डाउट बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि नेचर के करीब कोई ना जाना चाहता मौसम। भाई बहुत सारी दुनिया। वैसे आज तक मैंने कभी किसी को, अभी तक जो जिन लोगों से मैं मिली हूँ, मैंने किसी को नहीं सुना कि किसी को नॉर्दर्न साइड पर जाना पसंद ना हो, पहाड़ों में ग्रीनरी देखना पसंद ना हो। मतलब वैसे है मौसम कभी कोई पहाड़ी लोगों को नहीं पसंद होता होगा। जी नहीं, पहाड़ी लोगों को मैदानी इलाकों में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब कि वो लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, और हम वहां पर जाए ना पहाड़ देखने, वो कहता है अब यहाँ पे बस पहाड़ देखने आए हैं। भाई वो तो शुरू से रहना, तो हम लोगों को तो अच्छा लगता है नेचर को देखना, लेकिन उन लोगों की स्किन देखो, उन लोगों का कभी उनकी फिजिक देखो, बहुत मैं कहता हूँ हमारे यहाँ पे बाबे होते हैं, यानी कि जो एज जिनकी ज्यादा होती है, उनके गिट्टों में दर्द, गोडों में दर्द, पता नहीं कौन कौन से दर्द उन्हें जो है उठे हुए होते हैं। लेकिन पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं वो तो एवं ही पहाड़ चढ़ जाते हैं, पता भी नहीं चलता। अच्छा, वैसे पता क्या, अब आकर मुझे ये लगता है कि वाकई में जो जब आप इन ऐसी जगहों पर जाते हैं ना, तो क्योंकि यहाँ पर भी होता है कि सिग्नल्स बड़े कम आते हैं, टूटे फूटे आते हैं, अब मे भी अच्छे हो गए हों, लेकिन वाकई में मुझे भी लगता है कि थोड़े सिग्नल्स से ना साइड पर ही रहना चाहिए। आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए, नेचर को टाइम देना चाहिए आपको, उसके साथ मतलब जैसे मुझे लगता है कि अगर आप वहां पर जाकर थोड़ा सा ये शहर की दुनिया से और अपने मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल कर रहेंगे ना, तो आपको काफी अच्छा फील, और अपने घर वालों को भी टाइम दे सकेंगे, फैमिली के साथ जाएं। भाई मुझे तो घर वालों के साथ ही मजा आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे घर वालों में से कोई मेरे साथ होना चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा मजा उन्हीं के साथ आता है। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। अगर कभी मौका मिला तो हम लोग भी चले ही जाएंगे। तो गाइस, ये तो हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगेगी। इसी के साथ में इजाजत, हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।